آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو سیریل سٹارٹ کی ہے ایپل آف گولڈ سونے کے سیب، اور آج کا جو سرمن ہوگا انسان سدا روٹی سے جیتا نہ رہے گا۔ تو آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے ریفرنس نکالیے۔ خداوند کے کلام میں سے متی کی جیل چوتھا باب اس کی پہلی آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں لوکا کی انجیل میں سے لوکا 4 باب چوتھی آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ایک ریفرنس پرانے اہنامہ میں سے ہم لیں گے خداوند کے کلام میں سے استثنا 8 باب اس کی تیسری آیت خداوند کے کلام میں سے کہ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھ جائیں۔ آئیے ہولی اسپرٹ کے لیے پاکوں کے لیے ہم زوردار تالی بجا کر خدا کے نام کو پڑھیں گے۔ ہاللویا ہاللویا۔ تو آج کا جو سرمن ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ خداوند کے کلام میں سے ایپل آف گولڈ سونے کے سیب جیسے چاندی کی ٹوکری ہو اور سونے کے سیب اس میں پڑے ہوں، خوبصورت ترتیب کو شو کرتا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام با موقع باتیں کہی جائے تو وہ ایسے ہے جیسے چاندی کی ٹوکری میں سونے کے سیب پڑے۔ تو کرائسٹ ہمیشہ با موقع باتیں کرتا تھا، اور جب با موقع باتیں کی جاتی ہیں تو شیطان بائبل میں لکھا ہے شرمندہ ہوتا ہے۔ بولیے آمین۔ یہاں پر خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ شیطان کیا ہوتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح 40 دن رات فاقہ کرنے کے بعد آخر کو اسے کیا لگی؟ بھوک لگی۔ آخر کو اسے تو آزمانے والے آ گیا۔ اس کا مطلب ابلیس جو تھا 40 دن تک دیکھتا رہا اور آزماتا رہا ہے اور موقع نہیں مل رہا۔ اور ابلیس ہمیشہ یاد رکھیے کہ 3 باتیں آپ کی زندگی میں اپلائی کرتا ہے آپ کو گمراہ کرنے، آپ کو خدا کی لائن سے ہٹانے کے لیے۔ وہ جسم کی خواہش ہے، زندگی کی شیخی اور آنکھوں کی خواہش ہے، یہ ہر بندے پر لاتا ہے۔ مسیح کے سامنے بھی لایا، آدم ہوا کے پاس سامنے بھی لایا، مگر آج ہم یہ جو جسم کی خواہش ہے اس کے تعلق سے ہی سیکھیں گے۔ اور وہ لایا کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر چٹانیں تھی، پتھر تھے جہاں پر مسیح کھڑا ہوا تھا، اور 40 دن کے بعد لکھا ہے اس کو بھوک لگی۔ کرائسٹ کو کیا لگی؟ 40 دن رات دن فاقہ کر کے آخر کو اسے 40 دن کا ہی فگر کیوں ہے بائبل کے اندر؟ 40 دن کا لکھا، موسیٰ 40 دن تک لکھا کچھ نہیں کیا۔ ایلیا کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی 40 دن کا۔ 40 دن کی فگر اس لیے ہوتی ہے کہ باڈی کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ 40 دن تک انسان بغیر کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے، جب انسان بھوکا رہتا ہے اس کی باڈی اسے لیتی رہتی ہے ایسا 40 دن کے بعد فیٹ ختم ہو جاتی ہے اور نہیں کھائے گا اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی۔ اور انسان ایک دن روزہ رکھتا ہے تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار روزہ کس طریقے سے کھول لوں، لیکن جب پورا دن گزر گیا تو دوسرے دن کے اندر داخل ہوگا اسے اتنی بھوک نہیں لگے گی، فیل نہیں ہوگا۔ تیسرے دن اسے پھر فیل ہوگا کہ میں کچھ روزہ کھول لوں، کچھ کھا لوں، ہاتھ بڑھیں گے کھانے کی طرف سے۔ جب یہ 3 دن اس نے کچھ نہیں کھایا تو پھر 7ویں دن اس سے 6 دن کچھ نہیں ہوگا، 7ویں دن اس کی باڈی نیڈ مانگے گی، کہے گی مجھے کچھ کھانے کو مل جائے، ہاتھ بڑھیں گے کھانے کے لیے، گندم روزہ ٹوٹ گیا۔
वो यानी बर्दाश्त नहीं होती कि कुछ ना कुछ खाया जाए। तो 7वें दिन जो है इंसान किसी तरीके से कहेगा कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जब 7वां दिन पूरा निकाल लिया तो फिर जो है 14 दिन तक उसे फील नहीं होगा। 14वें दिन के अंदर उसे फिर शिद्दत से भूख फील होगी। उसका दिल चाहेगा कुछ ना कुछ ले लो बॉडी के लिए। जब उसने 14 दिन भी पूरे कर लिए तो फिर 15-16 दिन उसे भूख नहीं लगेगी। फिर 21 दिन के बाद उसे लगेगा कि मैं कुछ खा लूं। इसलिए बाइबल के अंदर 1 दिन का रोजा, फिर 3 दिन का रोजा, फिर 7 दिन का रोजा और फिर 14 दिन का रोजा, 21 दिन का रोजा। जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे बड़ी भूख लगेगी। जब 21 का दिन निकल गया तो फिर 40 दिन तक आपको भूख, 40 दिन के बाद आपको भूख लगनी ही लगनी है, तो फिर आपको कुछ खाना पड़ेगा। इसी तरह खुदावंद के कलाम लिखा, जब 40 दिन रात फाका करने के बाद लिखा मसीह को क्या लिखा, भूख लगी। तो चट्टाने ही चट्टाने थी, इर्द गिर्द चट्टाने, पत्थर थे। वो लिखा आजमाने वाला भी आ गया, इब्लीस आ गया। वो कहने लगा इन पत्थरों को क्या कि क्या बन जा, रोटियां बन। हालांकि बाइबल में लिखा खुदा तो इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से औलाद पैदा कर सकते हैं। आमीन। मसीह कहता तो पत्थर रोटियां बन सकते थे, मगर यीशु मसीह ने बामौका बातें कही। ऐसी जैसे रोपड़ी टोकरियों में सोने के सेब पड़े हैं, इमसाल की किताब में सुलेमान बादशाह कहता है। ऐसे प्रेजेंटेशन, ऐसी तरतीब कि आपको कहे वाह यार मौके की बात की है। यीशु मसीह ने भी इब्लीस के सामने मौका की बात कही। इब्लीस ने कहा इन पत्थरों को कह के रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा इंसान सदा रोटी ही से जीता न रहेगा, हर बात से जो खुदा के मुंह से। आइए इस बात की जोड़ करें, हालेलुया। ये मौका की बात थी, इब्लीस शर्मिंदा हो गया। भाइयों यही बात है कि इब्लीस को हमें शर्मिंदा करना है। वो शर्मिंदा हो गया और यही बात वो अदन के अंदर हवा के सामने लाया है। हवा के सामने लाया, वो वॉच कर रहा था, देख रहा था कि हवा आंखों की ख्वाहिश के अंदर फंसी। बाग के सारे पौधों के फल जो थे वो खाते थे, खा सकते थे ज्यादातर। खुदा ने मना किया था एक का। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि हवा जरूर उसे देखती होगी, तो इब्लीस भी देखता होगा कि हवा जो है आंखों की ख्वाहिश के अंदर भी फंस रही है। फिर खाने की ख्वाहिश है कि इसे पता नहीं क्या टेस्ट होगा, क्या मजा होगा इस फल खाने से। और खुदावन के कलाम में लिखा है इब्लीस उसके सामने भी हवा के सामने लाया। उससे कहा कि ये फल खा लो, तुम खुदा की मानद बन जाओगे। देखिए कहने लगी खुदा की मानद, इसे फल खाओ तुम। तो उसने क्या किया, उसने फल, हालांकि वो कह सकती थी, मौका की बात कह सकती थी, बामौका बातें कहना चाहिए थे उसे, बामौका कलाम उसे करना चाहिए था। हवा उसे कहना चाहिए था इब्लीस को, जब इब्लीस ने कहा इसे खा खुदा की मानद हो जाओगे, उसे कहना चाहिए खुदा ने हमें मना किया है, हम ये फल नहीं खा सकते। बाकी सारे दरख्तों के फल खा सकते, ये नहीं खाएंगे। खुदा का मैं हुक्म नहीं तोड़ सकती, ये कह सकती थी, मौका की बात नहीं कही। फिर उसे शर्मिंदा होना पड़ा। आदम भी मिल गया साथ ही, और फिर शैतान को शर्मिंदा करने की बजाय वो खुद शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदगी ये कि लिखा है फरिश्तों ने धक्के मारकर आदम हवा को बाहर कर दिया आदम से। भाइयों मौका की बात जब इब्लीस को करेंगे, इब्लीस शर्मिंदा होगा दुनिया में। इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने बनी इस्राएल को भी लिखा कि भूखा होने दिया, ताकि क्या करे, वो आजिज बने, वो इनकिसार बने। उनको भूखा रहने दिया ताकि वो खुदा की जात पर भरोसा करना सीखे, कलाम को सुनना सीखे कि कलाम से जिंदगी मिलती है, जिस्मानी रोटी से नहीं मिलती। खुदा देखना चाहता था, भूखा होने दिया, प्यासा होने दिया उनको। वो पानी को भी बड़बड़ाते थे, हमारे लिए कड़वा पानी, मर जाएंगे। मूसा गोश्त मांगते थे, खुदा ने आसमानी खुराक खिलाई। लिखा ना तेरे बाप दादा ने खाई, ना तूने खाई, तुझे आसमान की खुराक मैंने खिलाई, मन खिलाया। फिर भी बड़बड़ाते रहते थे, कुड़ते रहते थे।
कहते हमें मिस्र की गुलामी की चीजें याद आती है, कीड़े। अब देखिए उनका हाल, आसमानी खुराक, अच्छे से अच्छा खुराक खुदा उनके सामने रख रहा है, उनको दे रहा है। बड़बड़ाते रहते थे, बोलते रहते थे। खुदा ने कहा मैंने इसलिए इनको भूखा होने दिया ताकि ये आजिज हो जाए, ताकि मेरी बंदगी करें, जान जाए कि इंसान रोटी से ही नहीं जिंदा रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से, कलाम से जिंदगी है। भाइयों, किससे जिंदगी है? तो कलाम ही तो खुदा करता है, तो कलाम लेना नहीं चाहते, पर रोटी के पीछे पड़े होते हैं। बहुत बड़बड़ाते थे, बड़ी बकवास करते थे, बदतमीजी पर उतराते थे मूसा से, खुदा के खिलाफ कुफर बोलते थे कि हम यहाँ पर मरने के लिए आ गए, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें गोश्त नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। आज भी दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं, हर चीज मिल रही है, मगर फिर भी बड़बड़ाते रहते हैं। शुक्रगुजारी है ही नहीं, मुंह के अंदर निकलती नहीं। तो यही वजह थी कि सांपों बिच्छू ने उसको काटा और वो वहीं मर गए। भाइयों, जिंदगी कलाम से मिलती है। इसको कलाम को तो कुछ सुनने नहीं आता, घरों में बैठे रहते हैं। कलाम तो जिंदगी है, कलाम से तो जिंदगी मिलनी है। यीशु ने इसलिए कहा कि इंसान सदा रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से, कलाम। भाई कलाम, कलाम से जिंदगी मिलती है। कलाम होगा, रोटी मिले या ना मिले, कलाम होगा ना, जिंदा रहोगे। बोलिए आमीन। तो भैया कलाम हमारी जिंदगी के अंदर, इसलिए तो खुदावन के कलाम लिखा, यीशु मसीह भूखा प्यासा, लफ्ज आया, सामरिया के कुएं के ऊपर आ गया। कैसा? भूखा और प्यासा। लिखा वहां सामरिया औरत वहां पर पानी भरने आ गई। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पिला। कहती तो यहूदियों को मुझसे पानी मांगते, दी नहीं, नखरे कर रहे। यीशु ने कहा अगर वो पानी जो मैं तुझे देने को तू मुझसे मांगती, तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती। हालेलुया। आइए खुदावन के जलाल के लिए। तू भूखी ना रहती, तू प्यासी ना रहती, तू कैसी बात करती है? फिर वो कलाम की बातें की, उसकी जिंदगी बदल गई। जिस पानी को लेने के लिए आई कि इससे जिंदगी मिलेगी, मैं पीऊंगी, जिंदा रहूंगी, वो पानी को गड़े को छोड़कर भाग गया। हालेलुया। आइए जरा खुदावन के जलाल के लिए। हालेलुया। उसे पता चल गया कि कलाम से जिंदगी है। जो यीशु ने कलाम की बातें कर दी ना, वो शाद होकर चली गई। उसने कहा ये पानी क्या चीज है? खुदा के कलाम से जिंदगी है, मसीह से जिंदगी है। इसलिए वो पूरे अपने गांव वाले लोगों को लेकर आई है, सारे इलाके को ले आई कि मुझे वो खुरुस्तस मिल गया है जो क्या जिंदगी देता है। हालेलुया। जिसके पास जिंदगी का पानी है, जिंदगी की रोटी है वो। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को कहा जिंदगी की रोटी, यीशु ने कहा मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं हूं। जिंदगी की रोटी कौन है? जो मुझे खाता है वो अब तक जिंदा रहेगा। जिस्मानी रोटी खाते हैं ना, मर जाएंगे, मगर जो जिस्मानी रोटी खाएगा ना, वो हमेशा जिंदा। इसलिए तो हम शहरवानी के अंदर शरीक होते हैं। जो मेरा बदन खाता, मेरा खून पीता है, उसमें जिंदगी है। खुदा के कलाम में जिंदगी, जिंदगी कलाम से मिलती है। तो इससे कोई सुने ना, इससे कोई पढ़े ना, इससे कोई मोहब्बत ना करे, तो कोई मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, भाई ऐसे जिंदगी नहीं मिलती। खुदा के लोगों ने भाइयों फाका कशी के अंदर खुदावन की खिदमत की। पौलुस रसूल की लाइफ को देखें, लिखा बारखा खतरों के अंदर, डाकुओं के खतरे के अंदर, बैरी जहाज के खतरे के अंदर। एक दिन ईमाल की किताब में लिखा, एक लिखा जहाज जो है वो लिखा 14 दिन तक वहां पर अंधेरा छाया, और लिखा 14 दिन तक पौलुस रसूल वहां पर लिखा भूखा प्यासा फाका की हालत में रहा, मसीह की खातिर दुख सहा, सफरिंग के अंदर रहा, भूखे रहे वो। उनको पता था कलाम से जिंदगी मिलती है, मसीह से जिंदगी मिलती है। आमीन। और खुदावंद के कलाम में लिखा है जब शागिर्द आए मसीह के पास रोटी लेने गए हुए थे, और लिखा है सामरी औरत को जीत लिया, इलाका को ही जीत लिया सारे। और लिखा है यीशु मसीह के शागिर्द जब मसीह के पास आए तो क्या कहने लगे? उस्ताद रबी आ खाना खा ले। यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना ये नहीं है, मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को, ये खाना है भेजने वाले, कलाम सुनाऊं, जिंदगियां बचाऊं, मेरा खाना ये है। ये भाइयों खुराक से जिंदगी मिलती है।
यीशु ने कहा, फिर शागिर्द कहने लगे, आया उस्ताद रोटी खा ला, भुख बड़ी लगी था। मैंने कहा मेरा खाना, फसल पकी हुई, तुसी कहते 4 महीने बाकी ने। यीशु मसीह ने कहा, जब लोग आना शुरू हुए तो कहने लगा फसल पकी हुई है, तो तुम कहते 4 महीने बाकी है, 4 महीने बाद फसल कटी जाएगी। दोनों फसल पकी हुई है, और वो फसल मैं तुझे देता हूं, तुमने मेहनत भी नहीं की, उसे काटने के लिए तुम्हें देता हूं। तो यीशु ने कहा मेरी रोटी तो भाइयों ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को, यानी कलाम को पूरा करो जिससे जिंदगी मिलती है। तो भाइयों ये कलाम की बातें ही शागिर्दों ने सुनाई ताकि जिंदगी लोगों को मिल जाए। मैं और अभी खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, कलाम को ही सुनाते हैं ताकि जिंदगी मिले, वो जिंदगी मिले जो कसरत की जिंदगी है, बुरी आमीन, ना खत्म होने वाली जिंदगी खुदा हमें देना चाहता है। वो कलाम से मिलेगी, जिस्मानी रोटी से नहीं मिलेगी। खा ले अच्छी अच्छी रोटी, KFC की बर्गर खा ले, पिज़्ज़े खा ले, बड़े बड़े होटलों में जाकर खा ले, कढ़ाइयां खा ले, मर जाएंगे। मगर ये रोटी जब मिलेगी तो हमेशा जिंदा रहेंगे। हालेलुया। इस रोटी की तलाश में रहे, इसलिए यीशु मसीह ने शैतान का मुकाबला किया और उसे शर्मिंदा कर दिया। उसने इंसान सदा रोटी ही जिंदा रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, ये कलाम निकलता है, मसीह रोटी है, उसको अपने अंदर लेना है। उसको जब लेंगे तो हमेशा की जिंदगी पाते रहेंगे, मरेंगे नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी पा लेंगे। तेरे मुताबिक तेरे मुताबिक मेरी मुझे गाई, मेरी मुझे गाई। वादा पूरा कर दिया है, आंखों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, आंखों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों, तूने मेरे कदमों आसमानी न दिखाई है। तेरे मरहमत से, तेरे मरहमत से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है।